بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی ڈاکٹر تھی اور روزانہ رات کو اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور میری بیوی کے پاس بہت پیسہ آ گیا۔ بیوی کا راز جاننے کے لیے میں ایک دن بیوی کے ہاسپٹل گیا تو وہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاسپٹل میں داخل تھے، اور جب میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری بیوی 4 ڈاکٹروں کے ساتھ رات کے پہر میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میری وہ بیوی جس پر مجھے خود سے زیادہ مان تھا، جس کی محبت پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا، اس نے ہی میرے اعتبار پر ایسا وار کیا تھا کہ سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ میری بیوی مریضوں کے علاج کے نام پر راتیں ہاسپٹل میں گزارا کرتی تھی، مگر مجھے کبھی یہ خبر ہی نہ ہو سکی کہ وہ دراصل راتوں کو کرتی کیا ہے۔ میں تو اسے اپنے پیشے سے مخلص سمجھتا تھا، لیکن حد سے زیادہ محبت اور اعتبار انسان کو برباد کر دیتا ہے، جو کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے شریک حیات پر اعتبار کیا تھا، مجھے اس پر ناز تھا، اس کے کردار کو لے کر میرا سر ہمیشہ فخر سے بلند رہا تھا۔ میری اسی شریک حیات نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ 4 مردوں کے ساتھ رات کے اس پہر وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ شاید کسی عام عورت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ یقیناً میری بیوی ایک جیدار عورت تھی جو 4 مردوں کے ساتھ تنہا آدھی رات کو ہاسپٹل کے بند کمرے میں اپنی پارسائی کا لبادہ اتار چکی تھی۔ میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں کمرے کے اندر جا کر اپنی بے ضمیر بیوی کو بتاتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا گھناؤنا روپ دیکھ لیا ہے۔ اس کا راتوں کو ایک فون کال پر ہاسپٹل کی طرف دوڑنا، مریضوں کے نام پر بے چین ہو جانا، میرے لاکھ اصرار کرنے پر بھی ایک چھٹی نہ کرنا اور چند ہی مہینوں میں لاکھوں روپیہ کما لینا، ایک ایک کر کے مجھے آج ہر بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ میں ہاسپٹل کے باہر بنے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گیا تھا اور ماضی کا ایک ایک ورق پلٹتا جا رہا تھا۔ میری اور وردہ کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے۔ 3 سال میں ہماری کوئی اولاد تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں تھا۔ میرا ماننا تھا کہ یہ سب خدا کے فیصلے ہیں۔ میں اپنی بیوی وردہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی اور مجھے اس پر بڑا فخر تھا۔ دن ہو یا رات، وردہ کبھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہ ہوتی۔ وہ ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کام کرتی تھی اور جب بھی اس کے پاس ہاسپٹل سے فون آتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھے اپنے فرض نبھانے ہاسپٹل پہنچ جاتی۔ میں اور وردہ الگ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میری ماں، چھوٹے بہن بھائی اور بڑے بہن بھائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ الگ رہنے کا فیصلہ مجھے وردہ کی وجہ سے ہی کرنا پڑا، کیونکہ شادی کے وقت اس کا ڈاکٹری کا آخری سال تھا اور اسے روزانہ میڈیکل کالج جانا ہوتا تھا۔ اسی لیے جوائنٹ فیملی میں رہنا ایک مسئلہ بن گیا۔ وردہ کے پروفیشن کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک الگ گھر کا انتظام کر لیا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیشے کو جاری رکھ سکیں۔ میں خود ایک فیشن ڈیزائنر تھا اور شہر کے ایک بڑے مال میں بوتیک چلا رہا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی کافی اچھے تھے، لیکن جب وردہ نے ہاسپٹل جانا شروع کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ ہاسپٹل والے وردہ کو بہت اچھا پیکیج دے رہے تھے اور یقیناً یہ سب کچھ اس کی محنت کا صلہ تھا۔ کچھ وقت پہلے ہی وردہ نے ایک برانڈ نیو گاڑی بھی خرید لی تھی اور مہنگا ترین موبائل فون بھی۔ یہ سب میں بھی وردہ کو خرید کر دے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے خریدا تھا۔ وہ اپنے بل بوتے پر آگے بڑھنا چاہتی تھی اور میں اس کا شوہر تھا، لیکن اسے پھر بھی مجھ سے کوئی سپورٹ نہیں چاہیے تھی۔ اس کی یہی خودداری اسے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ میرے دوست بھی میری پسند اور وردہ کی ترقی پر بڑے خوش ہوتے اور کہتے یار واقعی تیرا نصیب بہت اچھا ہے، ہم تو اپنی بیویوں کی فرمائشوں سے ہی تنگ آ چکے ہیں اور تجھے تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ان کی یہ بات بالکل سچ تھی۔ وردہ نے آج تک مجھ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا اور مجھے پتا چلا کہ جیسا انسان کسی کو دکھائی دیتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دور سے نظر آنے والا خوبصورت منظر در حقیقت ایک سراب کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھ پر بھی ایک ایسی ہی بھیانک حقیقت اس وقت کھلی جب میری چھوٹی بہن کی شادی شروع ہوئی۔ ہفتہ بھر پہلے میری بہن کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا اور ایسے میں ہی وردہ اپنے پیشہ وارانہ ذمہ داری سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ کبھی کبھار وہ کوئی ایمرجنسی ہونے پر دن میں بھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرتی تھی۔ میری اماں کو اسی بات سے شکایت ہونے لگی کہ وہ گھر کی چھوٹی بہو ہے اور کسی بھی تقریب اور رسم میں شامل ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ میں نے اماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا کام ایسا ہی ہے کہ اگر وہ ہاسپٹل نہ جائے
तो शायद कोई मरीज जान की बाजी हार जाए। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से से कहती कि तेरी बीवी हॉस्पिटल में कोई इकलौती डॉक्टर नहीं है, उसे चाहिए हॉस्पिटल से कुछ दिन की छुट्टी लेकर बहू होने का फर्ज भी निभाए। खानदान वाले भी तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं कि छोटी बहू को तो ससुराल से कोई गर्ज ही नहीं है। अब मैं अम्मा को क्या समझाता, ना मैं वर्दा से कुछ कह सकता था ना ही अम्मा से। और वर्दा से मैं अपनी पसंद से शादी कर चुका था और शादी से पहले ही वर्दा ने यह बात साफ साफ कह दी थी कि वो अपने प्रोफेशन के ऊपर किसी चीज़ को फौकियत नहीं देगी। मैंने भी जज्बात में आकर वर्दा से वादा कर लिया था कि मैं कभी उसके और उसके काम के दरमियान में नहीं आऊँगा, लेकिन अब यही वादा मेरे लिए निभाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अम्मा का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अम्मा चाहती थी कि वर्दा मेरी छोटी बहन रोमाना की शादी के हर फंक्शन में शामिल हो और हर रस्म में हिस्सा ले। देखा जाता तो उनकी बात भी ठीक थी क्योंकि वर्दा की मुस्तकिल गैर मौजूदगी ने रोमाना के ससुराल वालों और मेरे खानदान वालों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि शायद हमारे आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। रोमाना की शादी में 3 दिन बाकी थे और वर्दा सुबह के 8 बजे हॉस्पिटल से लौटी तो मैंने मोहब्बत से इसे समझाया कि वो हॉस्पिटल से सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टी ले ले ताकि अम्मा के शिकवे शिकायतें दूर हो जाएं। मेरी बात सुनकर वर्दा को गुस्सा आ गया। उसने हाथ में पकड़ा अपना फ़ोन उठाकर फर्श पर फेंक दिया। उसका गुस्सा ऐसा ही खतरनाक होता था। वो कहने लगी, आप लोगों ने भी महीने भर की शादी रख ली है, सादगी से निकाह करते और अपनी बहन को रुखसत कर देते। रस्मों के नाम पर 1 हफ्ते से शोर शराबा डाल रखा है। हॉस्पिटल में मरीजों को मेरी ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि मैं इन फजूल सी रस्मों के चक्कर में मरीजों को छोड़ दूँ। वर्दा का अंदाज इस कदर जज्बाती था कि मैं खामोश हो गया। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद मुकम्मल और सही इलाज ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गए थे। शायद इसीलिए उसे मरीजों का एहसास बहुत ज़्यादा था। वो खुद कितनी ही बीमार क्यों ना होती, मैंने उसे कभी छुट्टी करते नहीं देखा था। एक रात तो वो शदीद बुखार में तप रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया वो फ़ौरन ही बिस्तर से उठी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मजबूरन मैं खुद उसे हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़ कर आया। जब वो इतनी शदीद बीमारी में हॉस्पिटल से गैर हाजिर नहीं हुई थी तो अब मेरी बहन की शादी के लिए कैसे छुट्टी कर लेती। मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर बन चुका था और अम्मा की तरफ देखता तो वो मुझे ठीक लगती और बीवी की तरफ देखता तो उनकी बात भी मुझे गलत न लगती। थोड़ी ही देर में वर्दा फ्रेश होकर आई और मेरे पास बैठ गई। उसका सर झुका हुआ था। वो कहने लगी, देखो ये बात, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन तुम्हें भी ये बात समझनी होगी कि मेरा काम बहुत अहम है। मेरे लिए 1 दिन की छुट्टी भी मुमकिन नहीं। मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ गिनती के ही डॉक्टर हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी भी मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मुझे इतना अच्छा पैकेज इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पूरी लगन और मेहनत से अपना काम कर रही हूँ। मैंने एक नज़र वर्दा पर डाली जो हमेशा की तरह खूबसूरत और पुरकशिश लग रही थी। जब से वो डॉक्टर बनी थी उसके अंदाज और फैशन भी जदीद हो गया था। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले ही मुतासिर था। जब मैं इस पेशे के साथ इस कदर मुखलिस देखता तो वो मजीद मेरे दिल में उतर जाती। मैंने वर्दा का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि वो आराम से अपना काम कर सकती हैं। अम्मा और घर वालों को मैं देख लूँगा। मेरी बात सुनकर वर्दा ने मुस्कुरा कर मेरे कंधे पर सर टिका दिया और कहने लगी कि एक दिन मैं इस मकाम पर पहुँच जाऊँगी कि दुनिया मुझे हसरत से देखेगी। मैं इतना पैसा कमाऊँगी कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचाई के उस मकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे आगे सबका कद बहुत छोटा हो जाए। वर्दा की ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। वो मरीजों का दर्द रखती थी तो फिर पैसा कमाने की ख्वाहिश क्यों कर रही थी। मैंने वर्दा से कहा कि हमारे पास पैसे की कौन सी कमी है, तुम बस गरीब लोगों की मदद करो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी कि उसे अपने दम पर कमाना है, वो मुझसे भी आगे निकलना चाहती है। मरीजों का ख्याल तो वो बहुत अच्छे से रखती है, पैसा तो उसे हॉस्पिटल से मिलता है। ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन बस रोमाना की बारात में ज़रूर शिरकत हो जाना। बाकी अम्मा को मैं हर दिन खुद देख लूँगा। वर्दा ने मुझसे वादा कर लिया कि वो हर हाल में रोमाना की बारात में शामिल होगी। मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन रोमाना की बारात वाली रात सब कुछ बदल कर रह गया। बारात से पहले के 2 दिन मेरी अम्मा का मिजाज बहुत ख़राब था। बात बात पर वो मुझे बातें सुना रही थी। पहले ही मैंने पसंद की शादी कर रखी थी और अब वर्दा का ये रवैया जलती में तेल का काम कर रहा था। अम्मा उठते बैठते मुझे कहने लगी, इससे अच्छा तो किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेते, कम से कम वो तुझे और घर को वक्त तो देती। ये क्या कि वर्दा सारी रात हॉस्पिटल में गुजार कर आती है और सारा दिन पड़ी सोती रहती है। अब तक तुम दोनों की कोई औलाद भी नहीं हुई। मैं खामोशी से अम्मा की बातें सुन रहा था और बारात का दिन आ गया। वर्दा शाम से ही घर पर थी और बारात में शामिल होने की तैयारी कर रही थी।
ये देखकर मुझे सुकून हो गया था और मुझसे पहले ही सज धज कर तैयार खड़ी हुई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो हमेशा से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हम दोनों घर से निकलने ही वाले थे कि वर्दा का फोन जोर शोर से बजने लगा। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वर्दा ने दूसरी तरफ बैठे हुए फोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर हॉस्पिटल से फोन आया था। वर्दा कुछ देर तो ना आने की बात करती रही, लेकिन फिर आगे से न जाने ऐसा क्या कहा गया कि उसने कहा ठीक है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैंने सवालिया नजरों से वर्दा की तरफ देखा। वो कहने लगी कि मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या सारे हॉस्पिटल में कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है जो हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ता है? तुमने साफ साफ कहकर क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर शादी है, तुम नहीं आ सकती? वर्दा की आंखों में आंसू आने लगे। वो नम लहजे में कहने लगी, आप जानते तो हैं मैंने कई दफ़ा इनकार किया, लेकिन क्या करूं, मेरा मरीज़ है, मुझे ही उसकी हिस्ट्री मालूम है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं बस कुछ देर में लौट आऊंगी। आप जब तक अपने घर वालों के आगे कुछ भी बहाना कर दीजिएगा। ना चाहते भी मैंने वर्दा की मिन्नतों पर उसे हॉस्पिटल के आगे उतार दिया और सख्ती से ताकीद की कि वो जल्द से जल्द शादी हॉल में पहुंच जाए। मैं जानता था कि आज के दिन उसका होना किस कदर ज़रूरी है, नहीं तो अम्मा ने मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करना। वर्दा ने फ़ौरन कहा कि हाँ, वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। वर्दा को छोड़कर मैं सीधे शादी हॉल पहुंचा तो तकरीबन सभी मेहमान पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में दुल्हे वाले भी आ गए। अम्मा और बड़ी भाभी मुझसे कई दफ़ा वर्दा के बारे में पूछ चुके थे। मैंने यही कहकर उनको मुतमिन कर दिया कि उसे पार्लर में काफ़ी वक्त लग गया है। जैसे वो तैयार होकर आएगी एक कॉल कर देगी और मैं जाकर उसे ले आऊँगा। अम्मा मेहमानों में मसरूफ़ हुई तो मेरी भी जान में जान आई, वरना उनके सवालों के जवाब दे देकर मैं थक चुका था। बारात को आकर काफ़ी देर हो गई थी। निकाह पढ़ाने के लिए तैयार बैठे थे। सभी लोग रुमाना के पास मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी वर्दा। मेरी माँ ने कहर बरसाती नज़र मुझ पर डाली। मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगा। मेरी माँ जान गई थी कि मैंने झूठ बोला है और यही एक बात मेरा सर झुकाने के लिए काफ़ी थी। मैंने कई दफ़ा वर्दा को फ़ोन मिलाया था, लेकिन न जाने वो कहाँ मसरूफ़ थी। उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। निकाह भी हो गया और मेहमानों ने खाना भी खा लिया। रुमाना के ससुराल वाले कई दफ़ा वर्दा के बारे में पूछ चुके थे और ख़ानदान वालों को यकीन हो गया था कि हमारी आपसी रंजिश है, शायद इसलिए वर्दा नहीं आई है। रुखसती से पहले रुमाना की सास कहने लगी, बहू डॉक्टर है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी इकलौती नंद के निकाह में तो शरीक हो जाती। रुमाना की सास की बात सुनकर अम्मा का सर झुक गया। रुखसती के बाद अम्मा गुस्से में कहने लगी कि तेरी बीवी की वजह से आज मेहमानों के आगे मैं बस जवाब ही देती रही। जितने मुंह उतनी बातें। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी डॉक्टर है जो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी का नया नया ससुराल है, वो लोग भी इस बात को लेकर न जाने उससे कितने सवाल पूछेंगे। तेरी बीवी एक निकाह में भी शरीक ना हो सकी, वो हमारे मरने पे भी नहीं आएगी। अम्मा के लहजे के तंज को मैं बखूबी समझ सकता था और सच तो ये था कि आज मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो जाता जो वर्दा एक दिन हॉस्पिटल ना जाती और उसकी जगह कोई और डॉक्टर उसके मरीज को देख लेता। मेरा भी एक दोस्त डॉक्टर था, लेकिन वो तो हर किसी के दुख सुख में बराबर शरीक होता था। अम्मा की बातों और खानदान वालों के सवालों ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वर्दा ने एक दफ़ा भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैं शादी हॉल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। आज तक मेरा हॉस्पिटल के अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं हमेशा ही वर्दा को दरवाजे से छोड़कर चला जाता था। आज जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि हॉस्पिटल में तो सारे ही बच्चे एडमिट थे। मेरी बीवी नेफ्रोलॉजिस्ट थी, इसलिए मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस तरह के मरीजों को देखती है। आज हॉस्पिटल में दाखिल होकर मैं चौंक गया था। ये तो कोई बच्चों का हॉस्पिटल मालूम हो रहा था। इत्तेफाकन मेरी नज़र वर्दा पर पड़ गई, जो मुझसे काफ़ी फासले पर थी और एक कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। इसलिए मुझे उसकी तलाश में ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना पड़ा। मैं अभी भी शदीद गुस्से में था, इसलिए उसके पीछे सीधा उसी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर के मनाजिर ने मुझे दहला कर रख दिया। कमरे के अंदर वर्दा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 4 और मर्द भी थे, और जो कुछ उनके दरमियान चल रहा था वो देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी वो बीवी जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, वो दर हकीकत अंदर से एक हैवान थी। मैं वापस हॉस्पिटल से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया था। मैं वर्दा के साथ 3 साल से था, लेकिन 3 सालों में एक दफ़ा भी उसका असल रूप नहीं देख पाया था। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन साथ साथ खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैं एक औरत का असल चेहरा नहीं पहचान पाया। मैंने वर्दा से बहुत मोहब्बत की थी, उसकी खातिर अपनी माँ को नाराज़ किया था। आज भी अपनी बहन की बारात में मैं सारा वक्त झूठ बोलता रहा था और सच्चाई सामने आने पर भी मैंने वर्दा को ही बचाने की कोशिश की थी कि वो बहुत मजबूरी में हॉस्पिटल गई है। लेकिन सच्चाई देखने और जानने के बाद मुझे अपने रिश्ते से घिन आ रही थी कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ
जो औरत कहलाने की भी लायक नहीं। मैं जान गया था कि खुदा ने हमारी झोली में औलाद का सुख क्यों नहीं डाला। माँ बनना वर्दा जैसी औरतों के नसीब में नहीं होता जो दूसरों की औलाद से खिलवाड़ करती हैं। इसलिए शादी के 3 साल बाद भी हम दोनों बे औलाद थे। बहुत सोचने और समझने के बाद मैं सीधे पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वालों ने मेरी निशानदही पर फौरन कार्रवाई की और उन 4 मर्दों समेत वर्दा को मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया। मैं उन सब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था क्योंकि मैंने सच को खुद देखा भी था और सुना भी। वो 4 मर्द मेरी बीवी वर्दा के साथ मिलकर एक मासूम से बच्चे के गुर्दे निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके दरमियान होने वाली बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वो लोग ये सब उस बच्चे के माँ बाप की मर्जी के बगैर गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज किया जाता था और इसी वजह से गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए शहर से हटकर इस बने हॉस्पिटल में लेकर आते थे, जहां हॉस्पिटल वाले मेरी बीवी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर इन मासूम बच्चों के जिस्मानी अज़ा खास निकालकर गुर्दे निकालकर फरोख्त कर रहे थे। बाहर के मुल्कों में छोटे बच्चों के गुर्दों की बहुत मांग है और बहुत ज़्यादा डॉलर के एवज ये गुर्दे खरीदे जाते हैं। मेरी बीवी वर्दा एक माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट थी। नेफ्रोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहा जाता है जिसे गुर्दों की बीमारियों में स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, लेकिन मेरी बीवी अपनी इस महारत को इंतहाई गलत रास्ते पर इस्तेमाल कर रही थी। वो मासूम बच्चों के गुर्दे निकाल कर फरोख्त करने के घिनौने कारोबार में शामिल थी। अगर वो चाहती तो अपनी तालीम को सही तरीके से इस्तेमाल करके बहुत से मासूम लोगों की दुआएं हासिल कर सकती थी, लेकिन मेरी बीवी ने गलत तरीके से पैसे कमाने को बेहतर जाना। पुलिस ने तमाम मालूमात हासिल करके बताया कि लोग पिछले कई सालों से इस काम में मुलव्विस हैं। सारे अस्पताल वाले इस काले धंधे में बराबर के शरीक हैं और ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो तालीम हासिल करके डॉक्टर तो बन गए लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को ना बचा सके। वर्दा इस पूरे ग्रोह को अपने पकड़े जाने की हरगिज़ तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये लोग रात के अंधेरे में ये गैर कानूनी काम कर रहे थे और शायद कुछ बड़े लोगों की सरपरस्ती भी उन्हें हासिल थी। लेडी कांस्टेबल वर्दा को अपने साथ लेकर पुलिस की वैन तक ले जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। लेडी कांस्टेबल जानती थी कि मेरे कहने पर यह कार्रवाई हुई है, इसलिए वो रुक गई। मैंने वर्दा की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से उसने ये सब किया। वो मेरी तरफ देखकर बेहिसी से मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने बहुत कम वक्तों में करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तुम सारी जिंदगी लगाकर भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 2 दिन के अंदर सारा निज़ाम खरीद कर जेल की सलाखों से बाहर निकल आऊंगी और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं वर्दा की बेहिसी और जीदारी पर हैरान रह गया था। उससे अपनी गलती का ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था, बल्कि वो बड़ी ढिठाई से अपने गुनाह को कबूल कर रही थी। मैंने उसी वक्त वर्दा को तलाक दे दी और खुद खाली हाथ वापस अपने घर लौट आया। मुझे अपने घर वालों, ख़ानदान वालों और उस माशरे का सामना भी करना था। लोगों की उठती नज़रों और सवालों का जवाब भी देना था, मगर मैं ये नहीं सोच सकता था कि कोई औरत इस कदर शफाक भी हो सकती है। वर्दा के ऊपर अदालत में केस चल रहा है और जिस तरह से कार्रवाई जारी है, ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा कानून वर्दा जैसी मुजरिमा को सज़ा दे सकेगा, या वो अपनी दौलत के बल पर खुद को आज़ाद करवा लेगी? क्या आपने भी कभी पढ़े लिखे दरिंदों को देखा है जिन्हें तालीम, एहसास और शऊर देने में नाकाम रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे इस बेल बटन के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन भी फ़ौरन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।